الصیام اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزہ انسان کے اخلاق پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو، کیونکہ روزہ نظر کو بچانے والا اور انسان کو پاک دامن رکھنے والا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کھانے پینے سے بچتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان اللہ کے روکے سے بھی رک جائے۔ روزے میں انسان رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کو اللہ کے بصیر ہونے کا زیادہ شعور ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان اپنی جسمانی غذا سے خود کو اللہ کی خوشی کی خاطر محروم کرتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ متقین کی لگام ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ لگام دیتا ہے، اور روزہ جو ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کے لیے یہ ڈھال ہے، اور نیکوکار لوگوں کے لیے یہ ریاضت ہے، مقرب لوگوں کے لیے یہ محنت ہے، اور یہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سارے اعمال میں سے روزے میں یہ بات سب سے زیادہ خاص ہے کہ انسان حقیقتاً دل سے روزہ رب ہی کے لیے رکھتا ہے۔ روزے میں ایک روزہ دار اپنی شہوت، کھانا پینا اپنے معبود کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اپنی محبوب چیزوں کو، جو چیزیں نفس کو بہت مرغوب ہیں، لذیذ چیزوں کو چھوڑتا ہے، ایثار کرتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان راز ہے، اس کی اطلاع دوسرے کو نہیں ہوتی، یا رب جانتا ہے یا بندہ۔ روزے میں بندہ کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑ کر اپنے اوپر قابو پانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ روزے کی تاثیر بہت عجیب ہے۔ ظاہری اعضاء کی حفاظت ہوتی ہے اور باطنی طور پر انسان کو قوت ملتی ہے، انسان کے جسم سے بہت سارے فاسد مادے دور ہوتے ہیں اور انسان کے شعور کو قوت ملتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو روزے کا اثر انسان کے جسم اور روح کے ایک ایک حصے پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ روزہ کیا ہے؟ دراصل عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے جیسے اعمال سے رک جانا، یعنی ان کے علاوہ دیگر روزہ توڑنے والے امور سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور مسلم کی روایت میں رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی ترتیب میں روایات میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان کے روزے ہر قدرت رکھنے والے غیر معذور مسلم عاقل بالغ اور مقیم مرد اور عورت پر فرض ہیں، جسے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اس موضوع سے خاص طور پر تعلق رکھتی کہ روزہ جو ہے احتساب کے ساتھ رکھنا، یعنی خالص ہو کر رکھنا جو ہے
इंसान से कैसे पिछले गुनाह माफ करवा देता है कि इंसान रब के लिए खालिस हो जाता है, इंसान रब के लिए खाना पीना छोड़ता है तो गुनाह भी छोड़ता है, इसी वजह से उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। चुनांचे अगर कोई शख्स बगैर सवाब की नीयत के या दिखावे की खातिर रोजे रखे या रोजे की हालत में गाली गलोच करे या लड़ाई झगड़ा और गंदी बातें करे तो ऐसे लोगों को रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा जहन्नुम से ढाल है, चुनांचे रोजे की हालत में कोई बुरी बात न कहे, न लड़ाई झगड़ा करे, न अपनी आवाजें बुलंद करे, और अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे लड़ाई करे तो कह दे कि मैं रोजे से हूं। ये रिवायत भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इससे हमें ये पता चलता है कि रोजे में अपनी जुबान की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजे की बड़ी फजीलत है। हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम के सारे आमाल दो चंद कर लिए जाते हैं, एक नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजादार मेरी खातिर रखता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए, मैं ही इसकी जजा दूंगा। यानी इसकी जजा का कोई तायुन नहीं है, बदला बहुत बड़ा है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रोजा गुनाहों के खात्मे का सबब भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाजें, जुमे के बाद दूसरा जुमा, रमजान के बाद दूसरा रमजान, अपने बीच के गुनाहों का कफ्फारा है, बशर्त ये कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। ये सही मुस्लिम की रिवायत। रोजा कयामत के दिन रोजादार के लिए सिफारिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे, और रोजेदार अफ्तार के वक्त अपने रब से मुलाकात के वक्त रोजे की वजह से खुश होंगे। ये सही बुखारी की रिवायत है। और रोजेदार जन्नत में रैयान नामी दरवाजे से दाखिल होंगे, और जब सारे दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद उस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। और इसी तरह से रसूलुल्लाह ने फरमाया रोजेदार के मुंह की बू कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग दूर कर देता। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इसी तरह से जैसे रमजान के रोजे हैं, रमजान के अलावा शवाल के 6 रोजे रखने के सबब पूरे साल के रोजे रखने का सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाया उसे रोजेदार के बराबर अजर मिलेगा, और रोजादार के अजर सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। इस हदीस को तिरमिजी ने रिवायत किया, इसे हसन और सही कहा है। इसी तरह हर महीने 3 रोजे रखना, जैसे अय्याम 20 के रोजे 13, 14 और 15 के, ये सवाब वाला काम है। इसी तरह यौम अरफा यानी 9 जुल्हिज्जा का, और इसी तरह आशूरा का यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखना, सोमवार और जुमेरात को रोजा रखना मुस्ताहब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हर महीने में 3 दिन का रोजा, और रमजान के रोजे 1 रमजान से अगले रमजान तक ये हमेशा का रोजा है। और यौम अरफा के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है ये अगले और पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। और आशूरा 10 मुहर्रम के रोजे से मुताल्लिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये पिछले साल के गुनाहों के कफ्फारा बन जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। और हर महीने के 3 रोजे की तफसीर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब, इब्न मसूद और अबू जर से अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 तारीखें चांद की तारीखें, इनका रोजा रखना है। हजरत अली से रिवायत है लैसा सियामु मिनत तामी व शराब, के रोजा जो है खाने और पीने से रुकना नहीं है, वलाकिन मिनल कज़िब, बल्कि झूठ से रुकना है, वल बातिल, और बातिल से, वल लग़व, और लग़व से रुकना है। अल मुसन्नफ की रिवायत है, इब्ने अबी शैबा की है, वॉल्यूम 2 है, पेज 422। अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि यकीनन दीन की मजबूती और उसका कयाम जो है सलात और ज़कात से, इन दोनों में फर्क नहीं किया जा सकता। और बैतुल्लाह का हज करना, रमजान के रोजे रखना, ये नेक आमाल में से, और सदका और रोजा रखना जो है ये साले तरीन आमाल में से। ये रिवायत भी अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की है, वॉल्यूम 11 है, पेज 46। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब तुम रोजा रखो
फिर चाहिए कि कानों का भी रोजा रखो, अपनी आंखों का भी रोजा रखो, अपनी जुबान का भी रोजा रखो झूठ से और गुनाहों से, और अपने खादिम को यानी अपने मुलाजिम को थोड़ा सा एज दो, उसको भी थोड़ी सी सहूलत दो। और तुम पर लाजिम है वकार और सकीनत। जिस दिन तुम रोजा रखो उस दिन वकार और सकीनत का खास तौर पर ख्याल रखो। और कहते हैं कि अपने रोजे वाले दिन को और अफ्तार वाले दिन को एक बराबर ना गुजारो, कि रोजे वाला दिन ज्यादा अहमियत का हामिल है। उस दिन चूंकि रोजा रखा है तो रोजे के असरात नजर आने चाहिए। बुखारी की रिवायत का नंबर है 1947। हजरत अबी जर से रिवायत है, जब तुम रोजा रखो तो इसकी हिफाजत करो जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, वॉल्यूम 2 पेज 421। ज़हाक कहते हैं कि सबसे पहला रोजा हजरत नूह ने रखा, फिर इसी तरह से लोग रोजे रखते रहे, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रोजे रखने के लिए कहे गए, इब्तिदा में 3 दिन के रोजे थे और इशा तक थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रोजा रखा करते थे पहले। इब्न कसीर की रिवायत है, वॉल्यूम 1 है, पेज 214। इससे मुराद ये है कि इब्तिदा में रोजे फर्ज नहीं थे, हर महीने 3 दिन के रोजे रखने होते थे। और अगर देखा जाए तो 36 रोजे बनते हैं। बात अब भी वही है, 30 रोजे रमजान के और 6 शवाल के, यानी हिसाब किताब अल्लाह ने पूरा रखा है, ये पूरे साल के रोजों के बराबर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये जो बात कही गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो थे वो इशा तक रोजा रखते थे, इससे मुराद यह है कि जैसे इब्तिदा में रोजा रखने के बारे में चूंकि अहकामात वाज़ेह नहीं थे, अभी रोजे की फर्जियत का हुक्म नहीं आया था, लिहाजा लोग जब रोजा रखते थे तो रोजा अफ्तार करने के बाद जब तक जागते रहते थे कुछ खा पी सकते थे, अगर कोई सो गया फिर नहीं खा सकता था। यानी जैसे फर्ज करें किसी ने अफ्तारी की और खाना खाने से पहले वो सो गया, यानी दोबारा खाना पीना नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह कर दिया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का रोजा, बाकी औकात में आप खा पी सकते हैं। और बगवी कहते हैं कि अल्लाह के इस कौल के बारे में, अल-हामिदून अस्साइहून, अल्लाह की हमद करने वाले, और अस्साइहून से मुराद रोजेदार है, क्योंकि रोजेदार जो हैं वो दरअसल अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ तर्क कर देते हैं। और सियाहत करने वाला जैसे तर्क करता है, ऐसे रोजा रखने वाला भी अपना सब कुछ तज देता है। और बगवी कहते हैं ये जो कौल है अल्लाह ताला का, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या लोगो जो ईमान लाए हो रोजे और नमाज से मदद लो। तो इनका ख्याल है कि रमजान चूंकि सब्र का महीना है और सब्र की असल जो है वो यही है कि रोजा रखा जाए, लिहाजा इससे मुराद रोजा है। वल्लाहु आलम। माह रमजान की खुसूसियत के हवाले से खास बातें कि आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रिवायत में रमजान आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की। इस महीने में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम करने के बायस पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और रमजान की 3 रातों 23, 25 और 27 में आपने सहाबे कराम को कयामुल लैल भी करवाया, यानी जिसे हम तरावी कहते हैं, आपने बाजमात पढ़ाई। ये तरावी 8 रकत थी और वित्र के साथ ये 11 रकात थी। जितने दिन आपने जमात करवाई वो इतनी ही थी। इसकी सराहत हजरत जाबिर की रिवायत से हमें मिलती है और हजरत आयशा की रिवायत में भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। इस महीने में लैलतुल कद्र भी है, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर है। और शब कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम करने का सवाब बहुत ज्यादा है। इसके बायस पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह से रमजान में सदका करना सबसे बेहतर सदका है। रमजान में दूसरे महीनों की बनिस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा सदका और खैरात करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात से हमें पता चलता है। और रमजान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा करने का सवाब मेरे साथ हज करने के बराबर है, यानी गोया रसूलुल्लाह के साथ हज किया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रमजान माह कुरान है। इसी महीने में कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने लौह महफूज से उतार कर आसमाने दुनिया पर भेज दिया था और वहीं से फिर मुसलसल ये नाजिल होता रहा। इसी के बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरआन नाजिल किया गया। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 है। रमजान जिक्र और दुआ का महीना। इस महीने में
دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص دعا کا وقت افطاری کا وقت، اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔